गो। हेलो, हाय, आदाब और सत श्री अकाल, और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे अभिनव लेकर आया हूँ दोबारा 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर आपका फेवरेट शो नो योर फैकल्टी। लेकिन आज हमने इसमें परिवर्तन किया है और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनके बारे में आपको बताऊंगा, और उन्होंने ये हमें आइडिया दिया था कि आज का जो शो है वो अलग होगा और एक अलग शो की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम है नो योर फार्मासिस्ट। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि स्पेशली हम किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आज सर का इस्तकबाल करता हूं जिनका नाम है डॉक्टर राकेश सोमानी, जो कि प्रिंसिपल हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी के। पहले उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूं और देन उसके बाद सर से करेंगे कुछ सवाल जवाब। Dr. Rakesh Somani is contributing as professor and principal of D.Y. Patil University School of Pharmacy, Navi Mumbai since 2019. On professional fronts, he is president of Western Regional Center of Association of Community Pharmacists of India, WRC-CPI, comprising of Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Goa states. He is also actively involved in activities of Association of Pharmaceutical Teachers of India, APTI, as the president of APTI Maharashtra state. He has completed his PhD in synthetic chemistry and has been involved in teaching and research since past 20 years, means 22nd years. He has more than 50 peer-reviewed research publications to his credit. His major research area includes heterocyclic chemistry, green chemistry and drug designing in cancer and tuberculosis treatments. He had established research collaboration with various national and international organizations such as National Institute of Health, USA, CDRI, Lucknow, OIDD program, USA, Rega Institute, Belgium, etc. His one of the research publications was awarded as Best Research Paper by Indian Drugs Manufacturing Association, IDMA, in 2014. He is a recipient of the Emerging Principal of the Year Award during First Global Pharma Summit in 2019 Mumbai. Well, congratulations for that, sir. Thank you. He has also bagged the Shri K.V. Subramaniam Memorial Award by Higher Education Forum, HEF, September 2021. HEM Shri Award 2021 by Hema Foundation, Mumbai. Inspiring Education Hero Award by EGN India by Study and Learn 2023. Leading contributor and influencer in academic research and industries at Advantage India Conclave, Mumbai. February 2024. For his contribution to pharmaceutical education, he has guided more than 50 postgraduate and 3 PhD students. Apart from academic responsibilities, he has been proactively working in accreditations, innovation, incubation and entrepreneurship development activities. Sir, बात काफी कुछ कहने के लिए, हालांकि जी आपका जो सीवी है और जो आपकी उपलब्धियां हैं वो इतने से समा नहीं पाएंगी, कम पड़ती हैं, लेकिन हमने कुछ कोशिश की कि आपके पास तक पहुंचा पाए। सर, वेरी वार्म वेलकम हियर। Thank you so much. Thank you. Ready and how Thank are you for you? those kind words of introduction. Thank you. माय प्लेजर सर। वही सवाल सर जिससे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले, तो उसी से आपके बारे में शुरुआत करूंगा, बातचीत करेंगे। Tell us about your journey here at D.Y. Patil University. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being? See, I was working, as you mentioned during my introduction, I was working at different places, and I was wondering that this university has no pharmacy college, so I got an opportunity to become the founding principal of D.Y. Patil University School of Pharmacy in the year 2019. So I got an opportunity to start the pharmacy institution under the guidance of our honorable president Dr. Vijay Patil sir. Importantly, while submitting the application to Pharmacy Council of India, since that time I was involved into activities, and over a period of time I am here since 5.5 years now as the founding principal of School of Pharmacy, and I realized that this particular institution, this particular university has given lot of opportunities to me to evolve myself, to take part into the journey of the student right from their entry to the exit. We have passed 2 batches of undergraduate program, and that is a sense of satisfaction to me. So as you ask me that how you have evolved as a teacher, as a human being, naturally this evolution process is a gradual process. Oh, yes. एक रात में या एक दिन में नहीं होती है, इसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें ओपन हार्टेडली सीखनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इस यूनिवर्सिटी का जो एटमॉस्फेयर है
उस एटमॉस्फेयर की वजह से, मेरा थोड़ा सा एक आध्यात्मिक बैकग्राउंड भी रहा है, Oh, wow. ये सभी चीज़ों की वजह से एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश मैं हमेशा करते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि आपको प्रोफेशन में काम करने के लिए बड़ा बड़ा दिल, बड़ी सोच रखनी पड़ती है। उस हिसाब से एक कोशिशें चल रही हैं और आई फील दैट वॉट एवर आई हैव डन सो फार इज रीजनेबली गुड। Oh, definitely, sir, definitely, and actually, very nice journey, sir, especially. Thank you. Nicely explained. What made you choose the field of pharmacy? How did you prepare yourself for this since school and college days? सी पर्टिकुलरली जनरली फार्मेसी के बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिलता है, एडमिशन मेडिसिन में नहीं मिलता है, तो फार्मेसी में आता है। तो शायद मैं भी वो एक एग्जेप्शन, मतलब वो वैसे ही स्टूडेंट रहा। Okay. तो यू नो आई वाज ट्राइंग हार्ड फॉर मेडिसिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात Yes. कर रहा हूँ मैं 93 94 की बात कर रहा हूँ। तो उस समय पे फार्मेसी वाज स्पेल्ड एट FARMACY। You know, that is how it was the era where we were not knowing कि फार्मेसी का स्पेलिंग क्या होता है। Spelling क्या होता है? Oh, हमको wow. लगता था हमारे पेरेंट्स को कि फार्मेसी मतलब कुछ फार्मर रिलेटेड होगा करके। Okay. I mean that is how that era was. Oh, yes. Now it is pharmacy, PHARMACY. All of us know because India is known as pharmacy of the world. Oh, yes. आज भारत में बनने वाली दवाइयाँ पूरे वर्ल्ड में जाती है। कोविड के टाइम पे आपने देखा है कि भारत एक बहुत ही अच्छी तरह से उभरा देश फार्मेसी के लिए, जैसे बहुत सारे कंट्रीज को अपनी तरफ से दी थी बिल्कुल दवाइयाँ। वैक्सीन प्रोवाइड की गई। तो आज के डेट में और 25-30 साल के पहले का फार्मेसी में जमीन आसमान का फर्क है। Definitely. तो मैंने इसेंशियली बायोलॉजी, मेरा 10वीं या 12वीं में अच्छा था, तो नेचुरली मेरा एम ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि भाई मेडिसिन या फार्मेसी, यू नो, दोनों में से एक चूज करेगा। मेडिसिन नहीं मिला तो फार्मेसी में आ गए और बस वो आ गए। लेकिन उसके बाद में जो हमने काम किया एज अ स्टूडेंट, बोलो पढ़ाई की, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की। फ्लाइंग कलर से मैं फार्मेसी पास हुआ। सो मुझे लगता है वो जर्नी भी एक सेटिस्फैक्टरी जर्नी रहा। Oh, wow, wonderful, sir. Nicely indeed, a nice journey. Okay. Important question, sir. Dr. Vijay Patil sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? Absolutely, as I mentioned in the beginning, that when I met Vijay Patil sir during my first introduction with him, I was mesmerized by his personality, by his vision for pharmacy. As I said, I am a founding principal of School of Pharmacy. That time there was no pharmacy college in this campus, and so I had to establish it. So sir said that you do whatever you want, but I want this school to be one of the premier institutions in the field of pharmacy in the country. A lot of freedom sir gave me to establish the school, to start new activities, and while I was talking to him, I realized that sir has a great vision, not only for the university but for the School of Pharmacy also. And in the very first year we started 2 programs, Diploma in Pharmacy and Bachelors of Pharmacy. And Yes. I'm happy to share on this platform today Wow. that we are starting Masters of Pharmacy also from academic year 24-25, that is this year. So we have Congratulations, diploma, sir. we have degree, we have masters, we have PhD. So जितने भी फार्मेसी के जो कोर्सेज इंपॉर्टेंट है वो सभी कोर्सेज 5.5 साल के पीरियड में हमारे स्कूल ऑफ फार्मेसी में है. दिस हैज कम फ्रॉम डॉक्टर पाटिल सपोर्ट एंड विजय सर्स ऑलवेज गाइडेंस. तो जिन स्टूडेंट्स को अभी ये पता चलेगा, जो अब बाद में भी इसको सुनेंगे, उनको ये भी पता होना चाहिए कि पहले आप सोच रहे थे सर बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में, तो बहुत और सारी भी डिग्रीज हैं Correct. जो फार्मेसी में है, तो आप वो स्पेशली कर सकते हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी डी.वाई. पाटिल यूनिवर्सिटी से. राइट. सर अब कुछ सवाल आपकी फील्ड के लेता हूँ मैं. हाउ फार्मेसी एजुकेशन एंड प्रैक्टिस इज रेगुलेटेड इन आवर कंट्री? देखिए हमारे यहाँ पे फार्मेसी एजुकेशन इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, Okay. सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली. दिस इज सेंट्रल काउंसिल जो फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत बना है. Okay. बहुत वेल नोन बॉडी है ये, और पूरा एजुकेशन जो है डिप्लोमा से लेके मास्टर्स तक का ये रेगुलेट होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से. उसके बाद में फार्मेसी प्रैक्टिस या प्रोफेशन जो है वो रेगुलेट होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल एज वेल एज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जॉइंटली रेगुलेट करते हैं. तो जो भी बच्चा डिप्लोमा फार्मेसी पास आउट होता है या फिर डिग्री फार्मेसी पास आउट होता है, उसको सबसे पहले तो रजिस्टर फार्मेसिस्ट करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. दिस रजिस्ट्रेशन इज गिवन बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, एंड दिस स्टेट फार्मेसी काउंसिल वर्क अंडर द एम्बिट ऑफ Pharmacy Council. Pharmacy Council, okay. So that is how this education and the field is regulated. Okay. As a pharmacist, what are the key responsibilities in management of chronic disease? See, और स्पेशली सर इससे पहले एक और सवाल पूछता हूँ कि व्हाट इज क्रॉनिक डिसीज, जिससे लोगों को पता चले, एंड व्हाट इज करंट स्टेटस ग्लोबली? देखिए आप क्रोनिक डिसीज मतलब जो 3-4 मेजर डिजीज है, पर्टिकुलरली हार्ट अटैक,
that is heart problems, उसके बाद diabetes, nowadays arthritis, all these things have become a chronic disease, तो जो लंबे समय तक चलते हैं और जिसके लिए लंबे समय तक दवाइयाँ लेनी पड़ती है उसको हम क्रोनिक डिजीज। डायबिटीज के लिए जैसे आपको 6 महीना 7 महीना नहीं चलता है, उसके लिए 8 साल 10 साल 15 साल दवाई ले रहे हैं। ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, सो इनको बोलते हैं क्रोनिक डिजीज। और अपने देश में क्रोनिक डिजीज बहुत ज़्यादा तरीके से फैल रहे हैं और ये लाइफस्टाइल डिजीज होने लग गए हैं, तो इसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत मैटर करता है। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था मैं उसके साथ ही जोड़ रहा हूँ आंसर इसका, कि क्या होता है कि लंबे समय के लिए दवाई लेने के लिए ये दवाइयों का बॉडी पे, सिंस दे आर एलोपैथिक मेडिसिन, उसका बॉडी पे बुरा असर भी होता है, साइड इफेक्ट भी होता है। तो अगर फार्मासिस्ट और डॉक्टर ये दोनों साथ में मिलके काम करेंगे तो नेचुरली इस डिजीज क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट विल बिकम मोर इजी जॉब। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिजीज जो होते हैं वो वेट गेन करवाते हैं, कुछ डिजीज की वजह से किडनी फेल्योर होता है या किडनी पे असर होता है, लिवर पे असर होता है अगर ज्यादा देर तक हम ये दवाइयाँ लेते। तो फार्मासिस्ट विल ऑलवेज मॉनिटर किस तरीके से कौन से पेशेंट को क्या असर हो रहा है। ये अगर वो डॉक्टर के साथ साझा करेगा, शेयर करेगा, तो डॉक्टर अपनी डोज रेजिमेंट कम ज्यादा करेंगे, मेडिसिन चेंज करेंगे कुछ समय के बाद में, रेगुलरली पेशेंट को मॉनिटर करेंगे। तो फार्मासिस्ट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा यहाँ पे हमारे देश में फार्मासिस्ट का मैनेजमेंट ऑफ डिजीज के लिए यूज जो है वो किया गया नहीं है अभी तक। लेकिन फॉरेन में अगर आप जाओगे, जैसा फैमिली फिजिशियन होता है वैसा फैमिली फार्मासिस्ट होता है। हमारे देश में अभी तक फैमिली फार्मासिस्ट एक कॉन्सेप्ट अभी तक उभरा नहीं है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। शायद हमारे फार्मासिस्ट को भी वो नॉलेज, पेशेंट काउंसलिंग का नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद में अपना नॉलेज भी अपग्रेड करना चाहिए। तो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी चाहिए वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हमारे फार्मेसी भी थोड़े कम होते हैं। तो अभी आने वाला समय जो है, जो स्टूडेंट अभी एडमिशन लेते हैं फार्मेसी के लिए, आने वाला समय वो बहुत बेहतरीन है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पेशेंट काउंसलिंग की तरफ जोर दे रहा है। तो एक समय आएगा जब आपका फैमिली डॉक्टर होगा, वैसे फैमिली फार्मासिस्ट होगा, तब जाके क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट पे उसका रोल और प्रोमिनेंटली उभर के आएगा। वाह, वंडरफुल, नाइसली एक्सप्लेन्ड सर। Okay, now the next one, sir. What technological tool and are the pharmacist using for chronic disease management? देखिए क्या है, आज के डेट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे डिजिटल हेल्थ केयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी काफी पेशेंट, आप एग्री करोगे मेरे से कि आज हम अगर कोई डिसीज होता है, कोई डॉक्टर डायग्नोस करता है, तो हम गूगल गुरु के पास जाते हैं, चेक करते हैं भाई ये बराबर है, इसका क्या प्रॉब्लम, उसका क्या प्रॉब्लम। तो गूगल गुरु एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन अभी डिजिटल हेल्थ केयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली 2014 के बाद में डिजिटल हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। तो आज बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे एप्स अवेलेबल है जहाँ पे हमको थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, TDM बोलते हैं हम उसको, थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का सपोर्ट ले सकते हैं कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ वो दवाई प्रॉपर ले रहा हूँ, उसका डोज प्रॉपर है कि नहीं, वो भी हम वो ऐप अपने को हेल्प करते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जिसकी हेल्प डॉक्टर्स ले सकते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री लेके उसमें अगर डालते हैं तो आपको रेडीमेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो मेडिनोवा वगैरह काइंड ऑफ मेडस्पेस, काइंड ऑफ जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर प्लेटफॉर्म्स क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट्स वेयर पेशेंट डॉक्टर ये एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे के साथ में बात करके टेक्नोलॉजी का आधार लेके आगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन की बात करूंगा, कोविड के टाइम पे टेलीमेडिसिन का बहुत अच्छा यूज हुआ, क्योंकि घर के बाहर आप निकल नहीं पाते थे, तो आप डॉक्टर से संपर्क कैसा करोगे, तो टेलीमेडिसिन के थ्रू गवर्नमेंट के चैनल्स थे, प्राइवेट पार्टनर्स भी उसमें थे, उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और मैं गुजारिश करूंगा कि ये यूज किया जाना चाहिए। डेफिनेटली सर। How patient counseling plays role in managing chronic disease? Yes, as I was telling you कि पेशेंट काउंसलिंग मतलब क्या, आप पेशेंट से बात करते। फार्मासिस्ट ने आज का क्या हुआ है कि हमारा फार्मासिस्ट सिर्फ केमिस्ट शॉप पे या फार्मेसी पे जाके दवाइयाँ देने का काम करता है। लेकिन अगर ये फार्मासिस्ट पेशेंट की हिस्ट्री जानेगा, उससे बात करेगा, उसके प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करेगा, डॉक्टर ने दिया हुआ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, वो कब लेना है दवाई, कितने टाइम लेना है, वो अगर उसको हेल्प करेगा, दवाई का टाइम होने के बाद में उसको कुछ एक रिमाइंडर सेटअप देगा, तो अगर ये बातचीत पेशेंट के साथ करता रहेगा, काउंसलिंग करता रहेगा पेशेंट का, तो मुझे लगता है कि पेशेंट का डिजीज मैनेजमेंट भी इजी होगा और सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर को पेशेंट मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
तो pharmacists play a very key role in patient management. Only thing is that pharmacists should get updated about it. Yes. Okay. How can a pharmacist collaborate with the physician and other healthcare professionals? I already mentioned actively कोई भी मेडिकल सेटअप में है, हॉस्पिटल रहो या प्राइवेट क्लिनिक रहो, वहाँ पे फार्मासिस्ट का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है. क्लिनिकल फार्मासिस्ट वहाँ पे चाहिए. तो कोई भी पेशेंट आता है तो डॉक्टर का काम है सिर्फ डायग्नोसिस करना, प्रिस्क्रिप्शन देने का काम वो राइट अगर फार्मासिस्ट को मिलता है और वो अर्न करने के लिए फार्मासिस्ट को अपना नॉलेज भी डेवलप करना पड़ेगा. डेफिनेटली. तो डॉक्टर विल डायग्नोस एंड फार्मासिस्ट विल प्रिस्क्राइब. तो सर इसके लिए एलिजिबिलिटी तो रहेगी फार्मासिस्ट की. यस. तो इस तरीके से अगर काम होता है तो बहुत अच्छा काम फार्मासिस्ट कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ हमारे देश में फार्मासिस्ट का पूरा पोटेंशियल नहीं यूज किया जा रहा है. दैट्स एरिया वेयर वी नीड टू इंप्रूव. क्योंकि हम लोग तो जैसा आपने बताया कि अगर हॉस्पिटल में ऐसा होना चाहिए तो हम तो हॉस्पिटल में एक ही जगह देखते हैं जो फार्मासिस्ट है कि भाई डॉक्टर के पास से आए तुम एक बात ये करना कि वहां से जाकर दवा ले लेना. बराबर. तो लोग इतना जानते हैं कि मुझे दवा लेनी है बस. तो उसको कम्युनिटी फार्मासिस्ट बोलते हैं. फार्मासिस्ट में भी 3 टाइप है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और चौथा है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट और पांचवा आपका सामने बैठा है दैट इज एकेडमिक फार्मासिस्ट. तो ऐसे 5 टाइप से. तो मैं जो बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक फार्मासिस्ट और इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट छोड़ दीजिए क्योंकि उनका एक निश डोमेन है. लेकिन हॉस्पिटल, कम्युनिटी और क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर पेशेंट काउंसलिंग पे ज्यादा जोर देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा काम इस पे होगा. इवन एकेडमिशियंस कैन ऑल्सो ट्रेन देयर स्टूडेंट्स टू बी अ गुड काउंसलर. राइट. एक सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी जनरेशन के सामने आता है और आपने जरूर देखा होगा, पिछले दिनों आपके पास ये न्यूज आई होगी. आए दिन हम कुछ फिट लोगों की न्यूज देखते हैं कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है जल्दी से. आप चाहे सिद्धार्थ शुक्ला के देखें या बल्कि कुछ दिन पहले तो अभी एक स्कूल की बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, किसी 4 साल की बच्चे के साथ हुआ है. आजकल 8, 9, 10 साल के बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है. 13, 14 साल के बच्चों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उन्हें पिछले दिनों हार्ट अटैक्स आए हैं. What is the reason? See, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, शायद मेडिकल डॉक्टर और ज्यादा उसको क्लैरिफाई कर सकते, लेकिन 2 चीजें, एक तो हेरिडिटरी भी होता है बहुत बार और दूसरा हमारा लाइफस्टाइल है. हम जो क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से लाइफस्टाइल हम स्ट्रेस को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये सब चीजें मैटर करती है. तो जो आपने कुछ केसेस बोला कि यंग पॉपुलेशन में भी हो रहा है, तो स्ट्रेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बिकॉज ऑफ विच मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज हैपन्स. जैसा कैंसर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रेस की वजह से आता है. तो अगर हम हमारी लाइफ खुशनुमा रखने की कोशिश करें, काम के बारे में स्ट्रेस तो आएगा ही, लेकिन उसको वेंट आउट करने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक अपने ये चांसेस कम होंगे. और दूसरी बात, हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें. हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब एक तो आपका वर्कआउट करना जरूरी है, योगा प्राणायाम करना जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या खा रहे हो आप वो मैटर करता है. बॉडी का जो आजकल की जो जेन जी बोलते हैं हम, जेन जी जो है वो बर्गर और पिज्जा के बाहर नहीं आ रहे हैं. मुझे लगता है बर्गर पिज्जा के बाहर आके उनको अपने खाने पीने के समय पे, सोने के समय पे अच्छी नींद लेना जरूरी है. ये सब चीजें अगर वो बैलेंस करेंगे तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें प्रॉब्लम जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होगी. लेकिन हेरिडिटी भी उसमें मैंडेट करता है. Yes. What is your view about the AI, sir? Especially, is it a boon or a curse? Because especially now it is booming and emerging in every field. Correct. Especially with also the pharmacy. Yes. So what's your take on it? See, क्या है, मोबाइल फोन एक जमाने में इट वाज अ नीड ऑफ आवर. आज हमारी सब एक्टिविटी मोबाइल पे होती है. Yes. तो मोबाइल इज अ नीड ऑफ द आवर. हमने बना लिया है उसको. 24/7 मोबाइल पे रहते हैं. विदाउट मोबाइल भी लाइफ चलता था. लेकिन ईज ऑफ वर्क जो होगा मोबाइल पे हो गया है. Yes. वैसा ही एआई का है कि एआई, इफ यू आस्क मी, इट इज गुड. यस, इट इज नेसेसरी, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज वेरी गुड. बट उसका कितना यूज करना है, उसमें कितने एथिक्स हमको फॉलो करने हैं, उसमें मॉरलिटी एस्पेक्ट क्या है, वो अगर हम देखेंगे किधर ना किधर रेगुलेटर होना चाहिए. Yes, तो अगर लाइफ में हम बोलते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में. हाँ, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अति सर्वत्र वर्जयात ऐसी संस्कृत में कहावत है. कोई भी चीज अति होती है तो वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाती है. अगर एआई का हम यूज अगर एथिकल करेंगे, प्रॉपर करेंगे, हमारे यूज के लिए करेंगे, आदमी के इंटेलेक्ट के बाहर वो नहीं जाएगा, तो मुझे लगता है एआई इज वेरी गुड टूल एंड वी मस्ट यूज इट. आई स्ट्रांगली रिकमेंड इट, provided we know where to use and where not to use it. Wonderful, nicely explained, sir. Sir, कुछ insights लेता हूँ आपकी लाइफ के. What is your greatest lesson you learned from your students? My students, I am very fortunate that in past 22-23 years I have got good students always. So मैं नए बच्चों से हमेशा मैं सीखने की कोशिश करता हूँ. उनका enthusiasm,
Wow. That is one. And second is नई उनके बारे में, उनके दिमाग में जो नई चीजें होती है, मैं वो सीखने की कोशिश करता कि how those new thoughts can be imbibed into course curriculum or in regular activities in the college. और मैं ये मानता हूँ कि as a principal I always directly deal with the students. मैं वाया जाने की कोशिश, मेरे को अच्छा लगता है जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, उनके साथ मिंगल होने की कोशिश करता हूँ. न्यू एनर्जी, न्यू थॉट्स, that is how I always learn from the students. That's actually, you look always energetic, enthusiastic. Yes, thank you. Okay, if you had not been a professor, you would be? That's a very difficult question, but मेरी हमेशा एक इच्छा रही, एम्बिशन रही कि मैं IAS करूं. मेरे शुरुआती दौर में मैंने UPSC के एग्जाम भी दी थी, लेकिन मैंने सीरियसली नहीं किया. उसके लिए 3-4-5 साल का पेशेंस लगता है. Yes. शायद उस टाइम पे मैं इम्पेशेंट था, तो मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया. बट मेरी इच्छा थी कि मैं IAS करूं, एंड आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट पर्टिकुलरली इन द फॉरेन सर्विस. IFS मेरा ज़्यादा था. तो इफ आई वुड नॉट हैव बीन इनटू टीचिंग, probably I would have kept patience and do UPSC examination. Must have gone into civil services. Oh wow. Okay. How do you juggle your hobbies with your career? Sometimes my career is my hobby. मेरे को रीडिंग अच्छा लगता है, तो मैं मेरे को काम की वजह से ट्रैवलिंग अगर करता है तो ट्रैवलिंग में मैं रीडिंग करता हूँ. आई रीड लॉट ऑफ मराठी लिटरेचर. आई एम फॉन्ड ऑफ मराठी लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर मैं बहुत ही रेयर पढ़ता हूँ, लेकिन मराठी लिटरेचर और पर्टिकुलरली स्पिरिचुअल, रिलीजियस, फिलोसॉफिकल. फार्मेसी कम पढ़ता हूँ आजकल वैसे, बट ये जो चीजें हैं ये ज्यादा एक सही झुकाव, एक सही वक्त पर आपके पास है. मैं बहुत पढ़ता हूँ. Which one actually you read अगर spirituality है? जिद्दू कृष्णमूर्ति, ओशो और अम्मा मूजी? नहीं, ओशो तो नहीं. मैंने शुरुआत के दौर में मेरे कॉलेज के दिनों में ओशो को पढ़ा था मैंने. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर पर्सन. मैं अगर आप बात करूँ तो जो महाराष्ट्र या इंडिया में जो संत हो चुके हैं, उनका संत लिटरेचर में बहुत पढ़ता हूँ, और काफी मैंने पढ़ा हुआ है और मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ. बट नॉट ओनली दैट, बट आई रीड रोमांटिक्स ऑल्सो, आई रीड नॉवेल्स ऑल्सो. आई लाइक रोमांटिक रीडिंग. की कुछ पोएम्स या कहानियां आती हैं. ऐसा कुछ अछूता नहीं है कि यही पढ़ूंगा. सब चीजें मैं पढ़ता हूँ. ओह वाओ. कुछ, क्योंकि आपने काफी सारी चीजें बताई हैं सर, तो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं मैं जो ऐड कर रहा हूँ. द बेस्ट एडवाइस यू गॉट इन योर करियर? At right time, I left pharma industry and joined academics. मैं pharma industry में 3 साल के लिए था. I was struggling there, I was struggling, and मुझे जो लाइफ का गोल मिल नहीं रहा था. तो मेरा एक झुकाव टीचिंग की तरफ पहले से था. जैसे मैंने बोला, मैं सिविल सर्विसेज में पढ़ता था. उस टाइम पे मैं टीचिंग में एक झुकाव होता था. मैं कुछ क्लासेस भी लेता था उस टाइम पे. तो मेरे जूनियर्स को मैं पढ़ाता था. मेरे बीफार्म के डेज में भी आई यूज्ड टू टीच देम. तो राइट टाइम पे मैंने इंडस्ट्री छोड़ा एंड टीचिंग में आया. दैट वाज माय टर्निंग इन माय करियर, आई फील सो. ओके. द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? अच्छा, सो when I received my PhD, it was a hard PhD after 5 years. Hard work, a lot of hard work. That was a very right moment. Second, when my parents felt very happy on certain occasions when I received some award, when my mother was present during that time, that was the happiest moment actually. Happiest moment. And there are a couple of many moments are there, but at least one or two I can. One or two actually you remain. Yeah. Okay, you remember. Oh yes. The saddest moment of your life, if you want to share? नहीं, ऐसा नहीं. I mean, when I had to leave my UPSC, that was saddest moment. मैंने हार्ड डिसीजन लिया कि मुझे अभी UPSC छोड़ना चाहिए और फार्मेसी में आगे करियर करना चाहिए. तो that was my saddest moment. क्योंकि मैं अभी भी, अगर भगवान दूसरा लाइफ देगा तो मैं UPSC के लिए आप जाएंगे, स्पेशली और डेफिनेटली. ओके सर, एक दिस और दैट राउंड, बट बिफोर दैट, एन आइडिया दैट चेंज योर लाइफ? An idea that changed my life, taking into education. Yes, becoming into education, pharmacy education. That has changed my life. That has given me lot of opportunity, because networking जो हुआ मेरा बच्चों के साथ, lot of opportunity, lot of people, lot of alumni meet me on this platform. मजा आता है. तो that idea is to coming into academics. That was a change. Yes, absolutely. Okay. So last one, sir. This or that round. I think you're ready for that. Yeah. Okay. I've given you the 2 options. You have to choose one. Okay. Veg or non-veg? Pure veg. Pure veg. Okay. Hardcore veg. Tea or coffee? Coffee. Okay. Gym or yoga? Both, ideally. Okay. But I'll prefer yoga. I mean, considering now typically 45 plus, I'll go to yoga now. Okay. Which you don't actually look like. But I have been avid gym work. That also fine, especially for stretching. Yeah, मैंने gym.
for cardio. Yeah. Cardio, yes. Early riser or night owl? नहीं, early riser. Okay. मैं 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ. अगर रात को 10:30 बजे close. 10:30 you call me, probably you'll not be able to reach me generally. टाइम कैसे मिल रहा है? 4 बजे उठता हूँ मैंने. 4 साढ़े 4 जब मुझे पढ़ना है ना, तो 4 साढ़े 4 से 6 साढ़े 6 बजे तक मैं 2 घंटा बिल्कुल पढ़ता हूँ. बिल्कुल पढ़ते हैं, बढ़िया. तो वो 2 घंटे पूरे रहते हैं. हाँ, वो मेरे होते हैं अपने. ग्रेट. इमोशनल और प्रैक्टिकल? मैं बहुत इमोशनल आदमी था पहले, लेकिन अभी ओवर पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिकल हो गया. बट इट इज ऑलवेज अ बैलेंस. आई विल टेल यू, ऑलवेज अ बैलेंस. Books or Kindle? You read the books a lot. Aroma of the pages. Yes. Mountains or beaches? Beaches. Beaches. Okay. Religious or spiritual? But you are spiritual. You both. Okay. You are actually having the equilibrium. Both. Spiritual also, religious also. Yes. Library or classroom? Classroom. Okay. This actually for the new ones of the OTT. I think you watch them. Amazon Prime or Netflix, Z5, Disney Plus, Hotstar. मैं honestly बोलूँ क्या, मैं इसमें से एक भी नहीं watch करता. अच्छा, आप फिल्म वगैरह देखने तो YouTube? हाँ, YouTube है या फिर जो भी है, बट मैं अभी तक मैंने इन चारों ऑप्शंस का कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया है भाई क्या होता है, बट अभी तक यूज नहीं किया काफी. So तो घर पे आप बोल देते होंगे इसको लगा दो बस. नहीं, बहुत रेयरली टीवी देखता हूँ. एक दो सीरियल्स आती है उतना ही. जरा न्यूज भी आजकल अभी व्हाट्सएप पे इस पे आ जाती है, तो अदरवाइज टीवी बहुत रेयरली हो गया है. एक टाइम था यूज्ड टू वॉच गुड थिंग, बट अभी नेटफ्लिक्स वगैरह कभी कभार एकदम रेयर. यूट्यूब देखता हूँ मैं. यूट्यूब में से तो फोन पे अवेलेबल है बस यूट्यूब में मोस्टली. ओके सर. सो ये थी सर से आज बहुत अच्छी सी बातचीत, स्पेशली विद डॉक्टर राकेश सोमानी सर, जिन्होंने हमें बड़ी खूबसूरती के साथ, खूबी के साथ काफी सारी चीजों के जवाब दिए और बहुत सारी चीजें हमें बताई भी जो स्पेशली आप लोगों के लिए काम में आने वाली है. लेकिन सर चलने से पहले बस आपको थैंक यू कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और एक मैसेज आप जो नए स्टूडेंट्स को देना चाहें जो आना चाहते हैं आपकी इस फील्ड में. मेहनत करो. मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. मेहनत करना चाहिए, और राइट एटीट्यूड आदमी को एक बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगी. तो एटीट्यूड, मेरे लिए एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड. दैट्स माय मैसेज टू माई सेल्फ एंड टू एवरीवन. वाओ, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हम लोगों के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो पर.